And see, whatever I will teach today, I'm not contradicting any other theories. Okay. If you're following any specific system, you follow it, not an issue. But whatever I say, just think about this. अब जब हम रत्न हम लोग बताएंगे, ठीक है, तो क्या क्या प्रचलन है? एक तो पहला सिस्टम ये है, लग्न, पंचम, नवम, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ हाउस के रत्न हम लोग बताएं, ठीक है, ऐसा है सिस्टम। दूसरा, फिर कुछ लोग इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर यही 159 के अगर 6 से 12 के भी लॉट्स हुए, देन उसको हमें इग्नोर करना है, ठीक है, ये सिस्टम। बट इसमें समस्या है इस सिस्टम में, नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है। पहले इसमें बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, अभी क्या ड्रॉबैक है क्या नहीं, डिटेल हम लोग अपने कोर्स में करेंगे, बट आप इतना समझें कि सिस्टम कंप्लीट नहीं है अपने लिए। दूसरा ओपिनियन ये है कि जो दशाएं चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग रत्न पहने, ठीक है, ओके, ये भी समझ में आता है कि रत्न हम लोग दशा के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं। बट आप मुझे ये बताओ कि मैं नहीं फॉलो करता विंशोत्तरी दशा, मैं फॉलो करता हूँ कोई अष्टोत्तरी दशा, क्या सेम जेमस्टोन बनेंगे अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी में? Naturally cannot. नेचुरली क्या नोट हो गए? ओके, ठीक है, मेरी स्पेशलाइजेशन अष्टोत्तरी दशा में नहीं है, मैं त्रिभागी दशा यूज करता हूँ या कोई और नॉट कंडीशनल दशा। ऐसी दशा है जो कि हर कंडीशन में यूज करी जाए, अगर वो दशा यूज करता हूँ, आपको लगता है कि वो सेम ग्रह का रत्न बनेगा वहां पर? कुछ बुनियादी कुछ भूल करते हैं ना इसमें हम लोग। दूसरा सिस्टम भी बहुत कारीगर नहीं है, मतलब हर चीज इसमें, मतलब कि हमें ना ज्योतिष के जो बेसिक नियम है उसको हमको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तीसरा, हमने नक्षत्र लॉर्ड, अब अगर केपी सिस्टम हम लोग बात करें या श्रीपति पद्धति या कृष्णमूर्ति सिस्टम, तो वहां पर नक्षत्र लॉर्ड का है सिस्टम, उसको यूज करके हम लोग रत्न बता सकते हैं, ठीक है, वो भी काफी हद तक सही है, ठीक है, बट वो भी कंप्लीट नहीं है। नाउ आई विल टेल दिस इन इंग्लिश। सो टिल नाउ वी हैव सीन we can recommend gemstone by using 159 houses and 159 lords houses. We have to ignore if these house planets are associated with 6, 8, 12. We have to ignore them. We can wear the rest of other planets gemstone, but that is also incomplete. Then we have other system. We can use Vimshotri Dasha based gemstones, but that is a Dasha specific recommendation. Okay, but let's say if I'm not using Vimshotri Dasha, then what? If I'm using some other Dasha, the planets will change. So it means that concept is not the foolproof, na? Then we can use KP system or any other system like Shripati Paddhati or Krishnamurti Paddhati. So there we can use the Nakshatra Lord system. We can use that also. That look somehow more refined way of recommendation as compared to the previous one of 159 system. Okay, this is what we have seen till now. Now I will give you my opinion. So these are the some famous techniques of recommendation of gems. Okay, but the very first thing which we should consider while suggesting any remedy, not only gemstone, any remedy, first you have to check on which category that remedy is falling. So if you read Jyotish book, so you will see variety of remedies. Okay, donations, fasting, gems, yagya, okay, yagyas, and some other pujas, visiting temples, okay, totkas, tantric remedies. We have these varieties of remedies. So there must be some difference among these. Okay, what is the difference that we have already discussed in a previous session also? I will repeat one more time. Depending on the type of karma you are dealing with, fixed karma of free will, we have to select remedies. Gemstone remedies or gem remedies, sorry, I'm using the wrong word. Gem remedy falls under the category of free will. Okay. If you have more free will in your chart, you can use gemstones in more better manner. If fixed karma is more, gemstones will not work for you.
Now, how Sir, to calculate I'm this? sorry to update actually. Free will karma is nothing but like 2, 6, 10. It's like that, no, sir? Free will No, karma. no. In not astrology, it's 6 like that actually. Yeah. That is a house specific thing. But I'm saying every house have some percentage of free will and some percentage of fixed karma. Achha. Okay. Okay, depending on them, you can calculate the total fixed karma on your chart and free will in your chart. Like for example, let's say 10th house. 10th house have 40% free, fixed karma and 60% free will. Okay, we can calculate it. I will teach you that thing in my course. Okay, that is the whole concept of suggesting Achha. remedy. Okay, sir, Okay. great. So let's say if you have 60% of free will in your 10th house, you can make more mistakes in your decisions. This is the first thing. Okay, if you have more free will, it means you have more freedom to do action. Are you understanding? So in your profession, you can take any decision. Uh, you can say like this. You can design your future easily. Okay, if more free will, that is good thing in your chart. Okay, but the negative part of having maximum free will is if you can't handle that much of free will, if you don't have that much of awareness within you, you can misuse it. So in that case, gemstones works. But let's say if I reverse it, if I say 60% fixed karma and 40% free will, gemstone will not work for you. Gemstones activities and remedies are kind of a practical remedies. Okay, you can see it working. It depends upon you totally. Okay, but yagya kind of remedy is not based on the free will. Those are fixed karmas remedies. Those are karmic remedies. Okay, so sometimes we see quick result of doing puja, and sometimes it will take time depending on the percentage of fixed karma. This is the first criteria. First, you have to select. You have to see for which purpose you want to suggest gemstone. For that purpose, for that house, for the planet, you have to see how much percentage free will that planet is holding. If more free will, you are free to recommend gemstone. ओके, मैं हिंदी में एक बार इसको बता देता हूँ. जेमस्टोन रिकमेंड करने का तरीका ये होगा कि हमको पहले ये देखना है कि कुंडली में फिक्स कर्मा कितना है, आपका फ्री विल कितना है. ठीक है, जितना ज्यादा कुंडली में जिस भाव में जितना ज्यादा आपको फ्री विल मिलेगा, जेमस्टोन आप उसका पहना सकते हैं. मैं ये नहीं कहता कि वो ही सूट करेगा, सूटेबल इज द डिफरेंट थिंग. मैं ये कह रहा हूँ कि पहना सकते हैं. यू कैन थिंक ऑफ suggesting. Whether that will work or not, that is the secondary thing that we will see. Okay. तो अगर कुंडली में आपको दिखता है, अगर आपका धन का भाव है, धन के लिए आप रत्न पहनाना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कुंडली का द्वितीय भाव और 11वां भाव है ना, 11th हाउस और सेकंड हाउस में आपका फ्री विल कितना है. फ्री विल को हिंदी में क्या बोलेंगे? इच्छा शक्ति. मोर टू डू विथ इच्छा शक्ति. इच्छा शक्ति काइंड ऑफ बोल सकते हैं ना. हाँ, कि हम वो हमारे हाथ की चीज है. ठीक है. और अगर कैसे चेक करेंगे फ्री विल, कैसे चेक करेंगे कि लग्न धन है क्या? ऐसे वो उसके लिए मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा. उसके लिए वो थोड़ा कैलकुलेशन है, वो आपको मैं बताऊंगा, है ना. मैं आज के सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज ऐसे भी होता है. ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं होता, ऐसे ही होता है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. ठीक है, जब हमें नॉलेज नहीं होती तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, वी चूज शॉर्टकट. ओके, बट व्हेन यू सजेस्ट एनी रेमेडीज, एक्चुअली यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ दैट पर्सन ना. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल सजेस्टिंग एनी रेमेडी. आपको कोई भी उपाय बताने से पहले ना वो सोच समझ के उपाय बताना है, क्योंकि वो उपाय निर्भर करेगा उस सामने वाले जातक के जीवन पे आगे. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी उपाय नहीं बता देना. जैसे मैं अभी हिंदी में एग्जांपल दे रहा था कि अगर मान के चलते हैं कि कुंडली में अगर आपका फ्री विल, आपका स्वतंत्र इच्छा परसेंटेज उसमें ज्यादा दिखाई देता है दूसरे घर में और 11वें घर में, तो वहां आप रत्न बना सकते हैं, है ना. बट जो प्रारब्ध से आए हुआ जो कर्म है, पूर्व जन्म से आए हुए कर्म, अगर उसकी परसेंटेज ज्यादा है उस भाव में, वहां जेम काम नहीं करेगा. जी. आप महंगे से महंगा रत्न पहन लो, नो यूज. एस्ट्रोलॉजिकल. ये पहला पैरामीटर है. ठीक है,
ऐसे ही सेम, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल डोनेशन, डोनेशन इज अ काइंड ऑफ अ रेमेडी, ओके, सो इफ यू वांट टू suggest remedy related to donation, donation kind of remedy works for fixed karma, not free will. Okay, fixed karma. Okay, it will reduce your negativity, or what we call that evil karmas, from your balance account. Okay, like let's say if you are donating something, so some percentage reduce, donate more percentage will reduce. It will take time. Maybe you are donating today, and after 5 years it will start showing its result, slow and steady. Okay, sometimes you see pujas, even mantra chanting and all. Mantra chanting is a kind of a remedy which works for in both ways, free will and fixed both. But the problem with fixed karma is it will take time, because you don't know na, how much burden you have in your chart. Okay, mathematically we are saying yes, 60%, 40%, but how you know what is the quantity of that 40% even? Okay, if I say you have to do Mrityunjay mantra if you want to get rid of your health problems. Okay, now you don't know like how many times you have to do that Mrityunjay mantra. Okay, let's say 51,000 times you are chanting today. So like this 51,000 you have to do 10 times. Then that thing will reduce and you will get a good health. Are you understanding? So more fixed karma, it means remedies will work for sure, but it will take time. Free will is a good thing, but the problem with free will is we can misuse it. Okay, there are a lot of things dependent upon us, na? Our psychology, our habits, our ego. Okay, शादी नहीं होती है कुंडली में, अब वो परेशान है, शादी नहीं हो रही है। कुंडली में आप देखो तो पता लगता है कि फ्री विल उसकी कुंडली में 70% फ्री विल है। अब वो शादी उसकी खुद की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि उसे कोई पसंद ही नहीं आती उस जातक को। समझ रहे हैं बात? वो खुद आईएएस है, तो वो एटलीस्ट वो चाहता है कि उससे उसके बराबर या उससे ऊपर की लड़की उसको मिल जाए। अब वो हर रास्ते को वो लोग रिजेक्ट करते जाते हैं। अब कुंडली में आप ढूंढते रहोगे इसको, ये चीज को, फिर अल्टीमेटली हमें फिर जोड़ना पड़ता है जबरदस्ती, कोई नेगेटिव योग निकाल के, इसलिए डिले हो रहा है शादी, इसलिए ये हो रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है? सो यू हैव टू think like this. So depending on the type of karma, we have to suggest remedy. First thing. Now let's say our topic is gems today. Okay. So let's say if it's free will is more in the chart. मान के चलते हैं कुंडली में फ्री विल बहुत ज्यादा है उस भाव में पर्टिकुलर। अब हमें जेम बताना है। अब क्या करें? पहली चीज ये कि जब हम रत्न हम लोग बताते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कोई फिक्स कोई बुक्स ऐसी नहीं है जो हमको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देती हैं जेम्स के ऊपर। रत्न के ऊपर बुक्स हमारे पास शास्त्रीय बुक कम है। एक मणिमाला नामक बुक है जहाँ आपको रत्नों का वर्णन मिलेगा। रत्न परीक्षा, बृहद संहिता, चैप्टर नंबर 80, चैप्टर नंबर 80 बृहद संहिता is talking about gems. Okay, we have Manimala book. In deep pages also you will see the uses of gemstone, but not in that manner that we are using nowadays. Rasha Rishi is saying for Surya Dasha, donate ruby. But what we do, we wear ruby. Okay. So Parasha Rishi, in some of shloka, he is saying to wear gem. But maximum number of times he says donate Pukhraj. तो पराशर ऋषि बृहद पराशर व्रत शास्त्र में महदशा का जब चैप्टर आता है, वहां वो बोलते हैं कि रूबी को आपको दान देना है, पहनना नहीं है। पुखराज को दान दीजिए जब गुरु आपका एफ्लेक्टेड हो, गुरु अच्छी पोजीशन पे ना हो। वो पहनाते नहीं है वो, तो ये पहनाने का चलन कहाँ से शुरू हो गया है, सबको सोचना पड़ेगा, है ना? और किसी को लगता है कि जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ये गलत है,
भगवान राम की कुंडली आप चेक करना, ठीक है। उसमें देयर इज अ स्टोरी ना, लाइक व्हेन लॉर्ड राम जब समुंदर क्रॉस करके जब उनको लंका जाना था, तो उनके मन में एक भय भी उत्पन्न था कि अ, रावण जो कि शक्तिशाली है, ठीक है, ब्राह्मण है, ठीक है, तंत्र मंत्र हर तरीका के ज्ञाता, सारे युद्ध कलाओं में निपुण है, उसको मैं कैसे हराऊंगा। जब वो भय आता है तो वो उस टाइम, देखिए उस टाइम पे और भी बहुत सारे ऋषि मुनि थे, तो उनको अगस्त्य ऋषि वहां उनको वो आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश देते हैं। वो आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो सूर्य के लिए होता है, तो आपको नहीं लगता कि वो अगस्त्य ऋषि उनको रूबी बना सकते थे वहां, है मैक्सिमम रूबीज तो श्रीलंका से ही आती हैं, तो कितना टाइम लगता, हनुमान जाते वहां से रूबी ले आते, पहना देते राम को, बात खत्म हो जाती। बट नहीं, वो कहते हैं आप ये आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश लो, उसको वो उसको वो पूजा करते हैं, वहां पर उसकी साधना होती है, तब जाके उनको आगे का मार्ग मिलता है। इसमें कुछ तो इसमें गूढ़ रहस्य है ना, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम हर जगह जेमस्टोन पे ले जा रहे हैं, जेमस्टोन, किसी भी जेमस्टोन ज्वेलरी की शॉप चले जाइए, वो सब जेमस्टोन में आपको कुछ भी बना रहे हैं जेमस्टोन। लग्न में केतु है जेमस्टोन पहनना, तो दशा राहु की चल रही है, गोमेद पहन लो, है ना। तो देर देर मस्ट बी सम सिस्टम। ओके, तो भगवान राम की कुंडली जब आप देखोगे, तो जब उनको शत्रु, रोग ऋण शत्रु 6th हाउस, उसमें फिक्स करना सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर उनको जम और इस तरह के उपाय वहां पर काम नहीं करते, तो वहां उनको वो चाहिए साधना, वहां चाहिए कुछ अलग तरीके की रेमेडी, उसका भी एक तरीका है सबको प्रिस्क्राइब करने। दैट्स व्हाई वी हैव दिस सिस्टम ऑफ चेकिंग the type of karmas. Depending on the karmas, we have to select remedies. Okay, so now let's say if you have more free will in your chart, okay, and we have come to conclusion, yes, we can wear gem. Now what is the next step? Next step is you have to check the karak tattva of gem. Okay, now what is the karaka of gem? Which plant is the karak for the gem? Not jewelry, gem. Sunny, Venus, actually. moon. ठीक है, मैं को हिंदी में इसको बता दूंगा कि हिंदी ऑडियंस भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करे। तो जेम पहनाने के लिए सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि आपकी कुंडली में फ्री विल ज्यादा होना चाहिए उस पर्टिकुलर भाव में। हमने माना कि चलिए ठीक है, फ्री विल बहुत अच्छा है उसमें, तो अब हम कंक्लूजन पे आए कि ठीक है, हम अब जेम पहना सकते हैं। तो अब जब रत्न हमारा फिक्स हो गया, तो अब सेकेंड स्टेप में हमको ये डिसाइड करना है कि जेम रत्न का कारक तत्व कुंडली में, जो कारक तत्व है, जो ग्रह कारक तत्व और भाव कारक तत्व, वो कुंडली में कैसा है। Actually, second and the Venus also comes in the picture, sir, for gems and all. Venus and moon both. Okay, but mainly moon. Second house generally recommends for gems and jewelry actually. तो कुंडली में चंद्रमा और मून का आपको देखना है बल। कुंडली में अगर दूसरा भाव, अगर चंद्रमा, ये दोनों चीजें ही अगर अच्छे, देखिए मैंने बल की बात करी है, मैंने ये नहीं बोला मेलेफिक बेनिफिट, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि वो चंद्रमा पापी है कि शुभ है, मैं बोल रहा हूँ बल। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मून, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेलेफिक एंड बेनिफिसिटी ऑफ मून। Okay, we have to check the strength of second house and moon. If you have strength, then you can go to third step. ठीक है, we can go to third step of selecting gemstone. हमें समझ में आ गया कि चंद्रमा में बल है, दूसरे भाव में भी हमें अच्छा बल दिखता है, तो अब हम रत्न का उपाय वहां कर सकते हैं। ठीक है, कारक तत्व भी पास हो गया। अभी आप गाड़ी लेंगे तो आप देखोगे ना कि शुक्र कुंडली में अच्छा है कि नहीं, चौथा घर है, तभी तो गाड़ी के लिए बोलोगे। अगर शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, चौथा घर और छठे घर, आठवें घर का अगर मिलता है, तो विल नॉट प्रिस्क्राइब फॉर दैट पर्सन ना कि आप गाड़ी चलाओ, अब बोलो गाड़ी अवॉइड करो। तो जेम के लिए क्यों नहीं करते हम ये?
आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा अब, है ना? तो जब आप ये स्टेप चेक करोगे ना, तो आधे से ज्यादा कैटेगरीज हॉरोस्कोप की कम हो जाएंगी। अब देखोगे कि 30% लोगों को जंक्शन सूट ही नहीं कर रहा, वो कम हो गया। वरना आज के टाइम पे तो 99% पीपल आर वेयरिंग जेम्स। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? अब ये आ गया, अब आपको देखना है कि ठीक है, अब मुझे फाइनेंसिस के लिए पहनना है। नाउ व्हेन वी टॉक 159 वाला जब लॉजिक लेते हैं, तो वहां पर सारे हमारे वो एरिया फुलफिल नहीं होते हैं। मुझे अगर मैरिज के लिए जेम पहनना है तो क्या करोगे? तो कहते हैं नहीं, फिफ्थ और नाइन्थ का पहन लो, नाइन्थ का हर जगह सूट करता है। ऐसा नहीं ना, कुछ भी फिट नहीं करेंगे हम। ओके, सो you can wear gems for every house. Okay, I'm saying कि every house is somehow good for you, because every house is showing some part of your life. If you need longevity, if you're falling sick, not falling sick, if you're seeing there's a danger to your life, longevity आपको बढ़ानी है, तो लग्न और अष्टम यही दो उपाय आपके सामने है पहनने के। तो वहां पर उसका भी रत्न बनेगा जब वक्त आएगा, तो वो भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, नाउ आपका कारक तत्व डिसाइड हो गया, आपका पर्पस भी डिसाइड हो गया कि हमें इसके लिए रत्न पहनना है, तो उससे रिलेटेड हाउसेस आप देख सकते हैं। नाउ व्हेन वी डिसाइडेड द कारक तत्व ऑफ जेम्स एंड ऑल, देन यू कैन think of like for which purpose you want to wear gemstone. Okay, now for that purpose you can check that house lord. Okay, only in the condition if that planet is benefic for you, then only you can wear gemstone, not for the malefic.